دروازہ کھول دے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ سیلفی کا جنون مزید 4 جانے لے گیا۔ پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں سیلفی بناتے ہوئے 3 بہنوں سمیت 5 افراد دریائے چناب میں ڈوب گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ روڈ پر ابراہیم والی پتن کے قریب 4 بہنیں اور ان کا کزن دریا میں ڈوب گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ دریائے چناب کے کنارے سیلفی بناتے ہوئے پاؤں پھسلنے کے باعث پیش آیا۔ مقامی افراد نے ایک لڑکی سمیت ایک شخص کو زندہ حالت میں دریا سے نکال لیا۔ ریسکیو کے مطابق دریا میں ڈوبنے والی 3 بہنوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 5 بہنیں اپنے کزن کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے دریائے چناب پر گئی تھیں، جہاں سیلفی لیتے ہوئے 3 بہنیں اور ان کا کزن دریا میں ڈوب گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی پتوکی میں سیلفی لینے کے دوران 24 سالہ نوجوان دریا میں ڈوب گیا تھا۔ 24 سالہ دیل لاہور صدر کینٹ کا رہائشی تھا، جو فیملی کے ساتھ چھٹی منانے آیا تھا۔ قبل ازیں وادی سوات کے سیاحتی مقام بحرین کی سیر کرنے آئے کراچی سے تعلق رکھنے والے شخص اور ان کی بیٹی سیلفی بناتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ اٹک کے علاقے فتح جنگ میں ڈیم میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب گئے۔ فتح جنگ کے نواحی گاؤں ڈھوک سیلو کے رہائشی نقیب اللہ اور عامر خان گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے قریبی ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل فتح جنگ منتقل کر دیا۔ عید کا دوسرا روز بھی سادگی سے منایا جا رہا ہے۔ سماجی فاصلے رکھے شہری جہاں اجتماعی سرگرمیوں سے پرہیز کر رہے ہیں، وہیں کراچی کے طیارہ حادثے نے بھی دلوں کو اداس کر رکھا ہے۔ پکنک، پارکس، فوڈ مارکیٹ سب سونی پڑی ہیں۔ عید کا تصور ہمیشہ ہی سے سحر انگیز اور خوشکن رہا ہے۔ یہ لفظ سماعتوں میں کچھ ایسی مٹھاس گھول دیتا ہے کہ جسم کا انگ انگ خوشیوں سے چہکنے لگتا ہے۔ لیکن آج عید بہت بوجھل قدموں سے دروازے پر موجود ہے اور کچھ ایسے روکھے پن سے دستک دے رہی ہے جیسے اس کا بھی دل یہی چاہتا ہو کہ دروازہ نہ کھلے تو اچھا ہے۔ ایسی سونی سونی روٹھی روٹھی عید کبھی دیکھی نہ سنی، گویا اب کے عید منانی نہیں گزارنی ہے۔ شاید حالی نے اسی سے متعلق کہا تھا، رہ گیا دے کر چاند دکھائی، چاند ہوا پر عید نہ آئی۔ ملک بھر میں شہروں کی رونقیں ماند پڑی ہیں۔ گلی گلی سونی اور پارکس کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں بھی شہریوں کو محصور نہیں کر پا رہی۔ نہ نماز عید میں گلے مل سکے اور نہ دوسرے روز اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ کورونا وبا کی وجہ سے جہاں شہریوں کو عید سادگی اور تمام تر احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے منانی پڑ رہی ہے، وہیں پارکس بند رکھے گئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں سیر سپاٹا عید کا حسن ہے، بچے خوش ہو جاتے تھے، مگر اس بار جو صورتحال ہے ہم سب کو چاہیے گھروں میں رہ کر عید منائیں۔ کورونا کی وبا نے عید پر اپنوں کو اپنوں سے دور کر دیا۔ جو پہلے عید پر گلے ملتے تھے اب ہاتھ ملانے سے بھی گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے احتیاط ضروری ہے، زندگی رہی تو اگلی عید کو بھرپور انداز میں منائیں گے۔ احتیاط بھی ضروری ہے اور عیدیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ اس دفعہ تھوڑا سا گزارا کر لیں جیسے ہوتا ہے۔ اس بار ہم مس کر رہے ہیں، پہلے جب ہم جاتے ہوتے تھے، اس بار ہم اپنے گاؤں نہیں جا پا رہے ہیں۔ شہری اقتدار کے پاس کہتے ہیں دعوتیں اور دوست یاد تو آ رہے ہیں، کیا کریں مجبوری ہے جا نہیں سکتے۔ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، ظاہر ہے لوگ جاتے ہیں فرینڈ صاحب، بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس بار یہ نہیں ہو رہا کیونکہ کورونا وبا ہے، اس لیے اس بار گھر میں کرنا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اب گھر پر عید کے دن گزارنے کے لیے پلان بنا گیا ہے، حالات بہتر ہوں گے تو پھر مل بیٹھیں گے۔ عید کے دوسرے روز سوات میں دریا کنارے واقع فضا گٹ پارک بھی ویران پڑا ہے۔ کورونا کے باعث سوات کی ضلع انتظامیہ نے عید کے موقع پر سیاحوں کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ وقار سواتی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وقار بتائیے گا۔ جی بالکل، رواں سال عید الفطر کے موقع پر ضلع سوات کی انتظامیہ نے سوات آنے والے ٹورسٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع سوات کے سب سے بڑے پارک فضا گٹ پارک میں اس وقت موجود ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل جو پارک ہے وہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر جو پارک کے انتظامیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہدایات ملی ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہ پارک کو مکمل طور پر بند کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت فضا گٹ پارک میں موجود ہوں اور یہ وہ فضا گٹ پارک ہے کہ ہر سال عید الفطر کے موقع پر یہاں پر بڑی تعداد میں جو ٹورسٹ ہے وہ یہاں پر آتے تھے، لیکن امسال کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں پر جو حفاظتی اقدامات کی وجہ سے اس پارک کو بند کیا گیا ہے۔ اگر اس حوالے سے کرونا وائرس کے مریضوں کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو پچھلے ایک ہفتے سے
है स्वात में दिन ब दिन जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से आवाम को बार बार ये आगाह किया जा रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकले और सयाह बिल्कुल स्वात ना आए और सयाह स्वात आने की ज़हमत ना करे। बहुत शुक्रिया वकार सवाती। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की ईद की खुशियां मान पड़ गईं। डेरा गाजी खान में पार्क, चिड़ियाघर और दीगर तफरीही मकामात बंद हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मिरानी। कोरोना वायरस ने जहां और मामलात खत्म कर दिए, वहां पर बच्चों की ईद की खुशियां भी मान पड़ गई। इस साल कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत पंजाब ने पार्क, चिड़ियाघर और तफरीह मकामात बंद करा दिए। इस तरह बच्चों की तफरीह के लिए कोई मकाम मुयसर नहीं है, तो बच्चों ने अपने महल्लों में लगाए गए झूले, खिलौनों के स्टॉल और ऊँटों पर सैर करके अपनी ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से हम ईद नहीं मना रहे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कोरोना से निजात दे। कोरोना की वजह से पार्क बंद है, जिसकी वजह से हम पार्क में जा सकते हैं, इसलिए हमारे मोहल्ले में झूले लगे हैं जहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए, ताकि हमारे तफरीह मकामात खुल जाए और हम अपनी तफरीह से लुत्फ अंदोज हो सके। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। कोरोना वबा की वजह से तफरीही मकामात बंद होने से जहां शहरी घरों में महदूद हैं, वहीं बच्चा पार्टी भी मौज मस्ती न होने से मायूस दिखाई दे रही है। जावेद रजा वट्टू रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में फैली कोरोना वबा की वजह से ईद उल फितर रवायती ईदों से मुख्तलिफ है। ईद के दूसरे रोज़ ज़्यादातर शहरी घरों तक महदूद हैं, ताहम फिर भी करीबी रिश्तेदारों के पास आने जाने का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस ने इस साल मीठी ईद के रंग फीके कर दिए हैं। वहाँ हमें ईद तो मिली है, लेकिन मार्केट्स भी बंद हैं और पार्क्स भी बंद हैं, जिसकी वजह से हमें ईद ही तो मिली है, लेकिन हम ईद खर्च नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम घर में ही ईद सारी गुजार। दूसरी जानब बच्चे भी बाहर मौज मस्ती करने से कासिर हैं। घरों में मैसूर बच्चे मोबाइल फ़ोन्स पर गेम खेलकर टाइम पास कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से सब पार्क्स बंद हैं। हमें ईदी तो मिली है, पर हम उसको खर्च नहीं कर सकते क्योंकि सब मार्केट्स भी बंद है, इसलिए हम लोगों ने ईद घर पे ही गुजारी है। बच्चे वालिदैन से सैर व तफरीह कराने की जिद तो कर रहे हैं, मगर तफरीही मकामात बंद होने की वजह से अजीज़ों अकरब से मिलने मिलाने पर ही इक्तफा किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। मुल्क भर की तरह थल में भी ईद सादगी से मनाई जा रही है। लोग घरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। हामिद अली गोलू रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह ठुल में भी ईद सादगी के साथ मनाई गई और लोग घरों तक ही महदूद रहे। ठुल का शुमार सिंध के उन बदनसीब शहरों में होता है जहाँ कोई पब्लिक प्लेस, अच्छा रेस्टोरेंट, पब्लिक पार्क और तफरीह मकाम मैसर नहीं, जहाँ लोग ईद के दिन अपनी फैमिली और बच्चों के साथ तफरीह कर सकें। यहाँ पे पहले जैसे ईद होती थी, लोग छोटे छोटे होटलों पे बैठ के टाइम पास करते थे। यहाँ तहसील ठुल के अंदर जो 24 यूसियों पे मुश्तमिल है और यहाँ 2 टाउन कमेटी, एक म्यूनसिपल कमेटी है, लेकिन यहाँ पब्लिक पार्क नहीं है जहाँ पे बच्चों को तफरीह मिल सके। ईद पे कोई भी पार्क नहीं है, लोग जो इन घरों तक महदूद है, कोई भी सहूलियत इस ईद पे हमें नज़र नहीं आ रही है। ठुल के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ठुल में कोई पार्क दिया जाए जिससे शहरियों को बेहतर माहौल फराहम हो सके। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज़, ठुल। बहावलपुर के शहर मुबारकपुर में भी ईद का दूसरा रोज सादगी से मनाया जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे यासिर नाइच। कोरोना वायरस के बायस मुबारकपुर में ईद का दूसरा रोज़ भी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। ईद के दूसरे रोज़ पाकिस्तान में लोग करीबी रिश्तेदारों से मिलने जाते और अपने घरों में भी दावतों का इंतजाम करते या फिर शाम के औकात में फैमिलीज पार्क या दीगर खूबसूरत जगहों का रुख करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ना तो घरों में ईद की वो रौनकें नज़र आ रही हैं और ना ही पार्कों में आवाम को जाने की इजाज़त है, जिसकी वजह से सब लोग अपने घरों में ही सादगी से ईद मना रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान, सियासतदान और समाजी शख्सियात की जानिब से कोरोना वायरस और PIA त्यारे हादसे की पेश नज़र अवाम से ईद सादगी के साथ मनाने की दरख्वास्त की है। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। ईद की रिवायती खुशियाँ कोरोना के त्यौहार ने धुंधला दी। ईद पर दोस्तों और रिश्तेदारों की जानिब से शहरी घरों पर रहने को तरजीह दे रहे हैं। शहरी कहते हैं जान है तो जान है। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। कोरोना की वबा ने ईद पर अपनों को अपनों से दूर कर दिया। जो पहले ईद पर गले मिलते थे अब हाथ मिलाने से भी गए। शहरियों का कहना है एहतियात जरूरी है, जिंदगी रही तो अगली ईद को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। एहतियात भी ज़रूरी है और ईदें भी होती रहती हैं, लेकिन यह कि इस दफ़ा थोड़ा सा गुजारा कर लें जैसे होता है। इस बार हम मिस कर रहे हैं, पहले जब हम जाते होते थे, इस बार हम अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं। शहरी इक़्तिदार के बासी कहते हैं दावतें और दोस्त याद तो आ रहे हैं, क्या करें मजबूरी है, जा नहीं सकते।
बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ज़ाहिर है लोग जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा क्योंकि कोरोना वबा है, इसलिए इस बार घरों में करना है। शहरियों का मजीद कहना था कि अब घर पर ईद के दिन गुजारने के लिए प्लान बना लिया है, हालात बेहतर होंगे तो फिर मिल बैठेंगे। कोरोना से मीठी ईद को फीका कर दिया। अलैया के इलाके पीर जगी पहाड़पुर में ईद का दूसरा दिन सादगी से मनाया जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। पीर जगी पहाड़पुर में ईद के दूसरे रोज़ नन्हे बच्चों ने अपने ननिहाल का रुख किया और अपने हम असर बच्चों से ईद मिलते और खेलते नज़र आए, और दूसरी तरफ बच्चे खेल के मैदानों में खेलते दिन गुजारने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस मौके पर बच्चों की खुशी दीदनी थी, तो दूसरी तरफ लोग घरों में पक्के पकवानों से महजूज होते दिखाई दिए, जबकि किसानों ने अपने खेतों का रुख किया। कोई कपास की गोटी में मसरूफ़ है तो कोई खेतों में पानी लगा रहा है। इस मौके पर किसानों का कहना है कि मज़दूर लोगों की ईद सिर्फ़ एक दिन की होती है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत और जाँफिशानी से काम करना हमारा मुक़द्दर है। हमें ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करने के लिए ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, क्योंकि हमारी आमदनी का वह ज़रिया यही खेती बाड़ी है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जगी पहाड़पुर लिया। ऊद शरीफ में लॉकडाउन में नरमी होते ही ईद के दूसरे दिन शहरियों ने कसीर तादाद में मज़ारात का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर थईम। जहां मुल्क भर में शहरी ईद की खुशियां मना रहे हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से औलिया कराम की सरजमीन ऊद शरीफ में भी लॉकडाउन में नरमी होते ही ऊद शरीफ में मज़ारात को ज़ायरीन के लिए खोल दिया है, जिसके बहस ज़ायरीन की बड़ी तादाद में बरसगीर पाक हिंद हज़रत शेरशाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी के लिए पहुँच गए, जबकि हुकूमत की जानिब से मज़ारात को खोलने पर ज़ायरीन के चेहरे खुशी से खिल उठे। कई हफ्ते से कोरोना वायरस की वजह से मज़ारात को ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया था। मज़ारात के खुलने पर मज़ारात के बाहर लगने वाले दुकानदारों का काम भी चल पड़ा। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी और मज़ारात ज़ायरीन के लिए खोलने पर सजादा नशीन हज़रत शेरशाह सैयद जलालुद्दीन हैदर, मखदूम सैयद ज़मर बुखारी और वली अहद सैयद हसन ज़मर बुखारी ने मुल्क में अमन और सलामती और कोरोना वायरस की निजात के लिए दुआ कराई। कैमरामैन इजाद हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद सच न्यूज़ और शरीफ। ईद के दूसरे रोज सुबह सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख में मौसम अबर आलूद लेकिन गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि वालाई अजला में जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद रहेगा। इसी तरह इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और श्रीनगर में भी मौसम गर्म रहेगा, ताहम दिन के कुछ औकात के दौरान बादल आसमान पर छाए रहेंगे। मेट ऑफिस के मुताबिक जम्मू में भी दर्जा हरारत तेजी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से शहरियों को एहतियात का मशवरा दिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जैकबाबाद, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, सिब्बी, मोहनजोदाड़ो और लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर की तरह दादू में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, तो बच्चों ने ईद के दूसरे रोज नहरों का रुख कर लिया। शोएब थईम हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सच न्यूज़ की पूरी टीम को, तमाम अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पूरे मुल्क की तरह दादू में भी ईद जो है वो निहायत अकीदत व एहतराम और सादगी के साथ मनाई जा रही है। इस हवाले से मैं बताना चलूँ कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से SOPs पर अमल दरामद करने के लिए दादू ज़िला भर की तमाम पब्लिक पार्क, तफरी मकामात और होटलें हैं वो मुकम्मल तौर बंद हैं। आज ईद का दूसरा रोज़ है। आज ईद के दूसरे रोज़ जो है वो बच्चों की बड़ी तादाद ने नहरों का रुख कर लिया है। इस हवाले से मैं ये भी बताना चलूँ कि दादू में जो गर्मी की दर्जा हरारत है वो 45 सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर गई है। गर्मी से तंग आकर बच्चों की बड़ी तादाद ने नहरों में जो है वो नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ बच्चों से जब हमारी बात हुई तो बच्चों का कहना था कि इस मरतबा ईद के मौके पर तमाम पब्लिक पार्क और तफरी मकामात बंद होने की वजह से वो ईद की खुशियों से महरूम हैं। इस सिलसिले में मैं ये भी बताना चलूँ कि एक तरफ तो गर्मी है और दूसरी तरफ ईद के मौके पर भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी जो हैं वो ईद की खुशियों से महरूम हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया शोएब थईम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सूरज का पारा हाई हुआ तो गर्मी को भगाने के लिए ईद के दूसरे रोज चौक आजम के शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। बच्चे ठंडे ठंडे पानी में खूब मौज मस्ती करते रहे। रिपोर्ट करेंगे जाहिद हुसैन। चौक आजम ने ईद के दूसरे रोज ईद डे मनाने और गर्मी भगाने के लिए नहर का रुख किया।
नहाने के लिए शहरियों में आए बच्चे बड़े सभी मौजूद थे, जो कि ईद को भरपूर तरीके से मनाते नजर आए। आज ईद का दूसरा दिन है, हम नहाने आए, बहुत मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी एंजॉय कर रहे हैं। नन्हे बच्चे भी नहर में भीगकर खूब मस्तियां करते रहे। मैं अपने चाचू के साथ आया हूँ, नहाने आया हूँ, बहुत मजा आ रहा है। 42 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को कम करने का वैध हल शहरियों को फ्री स्विमिंग में मिला। कहते हैं ईद के दिन अब तो नहर पर ही गुजारेंगे। बहुत ज्यादा हम इधर नहाने आए हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है। ईद का दूसरा दिन है, आप भी इधर आए, एंजॉय करें, नहाएं, बहुत मजा आएगा। सख्त गर्मी आग बरसाता हुआ सूरज, उसमें मिल जाए ठंडी ठंडी छांव में ठंडा ठंडा पानी, तो ये भी कुदरत की किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन जामिद रजा मलकानी के साथ जैद हुसैन मलकानी, नुमाइंदा सच न्यूज चौक आजम। दादू में एसओपीज की खिलाफ वर्जी, गोरख हिल स्टेशन सयाहों के लिए खोल दिया गया। ईद के दूसरे दिन सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सयाहों की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जा रही। दादू में एसओपीज की खिलाफ वर्जियाँ, गोरख हिल स्टेशन सयाहों के लिए खोल दिया गया, एसओपीज अपनाई नहीं जा रही। शोएब तईम हमारे साथ मौजूद है। शोएब, बताइएगा। जी अरसलान, गोरख हिल अथॉरिटी ने हुकूमत की एसओपी पर अमल करने वाले तमाम अहकामात की धज्जियां उड़ा दी हैं। मुल्क भर में तमाम तफरी मकामात, पब्लिक पार्क और होटलें बंद हैं, लेकिन गोरख हिल स्टेशन अथॉरिटी सयाहों के लिए खोल दिया गया है और सिंध के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इंतजामिया ने भी इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। इस हवाले से मैं बताना चलूं कि दादू से 90 किलोमीटर के फासले पर 6800 फुट की बुलंदी पर गोरख हिल अथॉरिटी जो है मकाम है, जिनको ना सिंध के कोमरी भी कहा जाता है, जहां मुल्क भर से लोग जो है बड़ी तादाद में सियाहत के लिए आते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए हुकूमत ने तमाम तफरी मकामात को बंद करने के सख्ती से अहकाम जारी किए हैं, लेकिन गोरख हिल अथॉरिटी ने हुकूमती ऐलान को हवा में उड़ाकर ईद की मौके पर जो है वो सयाहों के लिए खोल दिया गया है और सिंध के तमाम शहरों से सैकड़ों की तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है और वाई पांदी के इलाके में 4 व्हील गाड़ी 15 से 20 हजार रुपया वसूल करके सयाहों को गोरख हिल के मकाम पर ले जाने का सिलसिला जारी है और गोरख हिल में आने वाले तमाम सयाहों के लिए रेस्टोरेंट भी खोल दिया गया है, जिस वजह से कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा है और इंतजामिया ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ है। बहुत शुक्रिया शोएब तईम। ईद के दूसरे रोज बिहाड़ी के शहरियों ने दरियाए सतलुज हेड इस्लाम का रुख कर लिया। कोरोना से बेखौफ शहरियों ने दरिया की सैर की और खूब हल्ला गुला करते रहे। रिपोर्ट करेंगे सैयद हसनैन अली। ईद के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने दरियाए सतलुज हेड इस्लाम का रुख कर लिया है, जहां पर वो कोरोना की परवाह ना करते हुए खूब हल्ला गुला कर रहे हैं। मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद दरिया की सैर करने के साथ साथ दरिया की ताज़ा मछली खाकर ईद की खुशियां मना रहे हैं। मछली फरोश दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के बावजूद भी लोग शौक से मछली खा रहे हैं और पैक करवा कर घर ले जा रहे हैं। अब ईद आई है, बच्चों और दोस्तों के साथ तो एंजॉय करने आए हुए हैं और ईद की खुशियां मना रहे हैं। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज, बिहाड़ी। ईद उल फितर उर्फ़ आम में मीठी ईद मशहूर है। मीठी ईद पर मीठा हो जाए नहीं, बल्कि मीठा मीठा हो, बल्कि ईद पर हलवाई और बेकर्स की चांदी हो जाती है। रिपोर्ट करेंगे आशिक कुरैशी। ईद सईद के मौके पर नवाबशे की मिठाइयों में सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ सौगात दूध से तैयार होने वाली रस मलाई बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। रसमलाई हमारे नवाबशे की मशहूर सौगात है। ये हमारे नवाबशे में आम दिनों के अलावा जो ना ईद त्यौहार पर बहुत ज़्यादा बिकती है, तो यहाँ लोग दूर दूर तक जो ना ये हमारे यहाँ की रसमलाई नवाबशे की बहुत मशहूर है और बहुत दूर दूर तक जाती है। दूध पेड़े रसमलाई की जायके को मज़ीद जायकेदार बना देते हैं और खाने वाले का पेट तो भर जाता है मगर नीयत नहीं भरती। यहाँ पर ये बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी, क्योंकि नवाबशाह की सौगात है। हर लोग बच्चा हर शख्स पसंद करता है। हम रिश्तेदारों को दूसरे शहरों में भी गिफ्ट के लिए भेजते हैं, बहुत पसंद की जाती है। अपने अजीज़ व अकारीब के यहाँ जाने वाले बतौर गिफ्ट इसको लेकर जाते हैं। फैसलाबाद में शहरी मीठी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए मिठाइयाँ खरीदने में मसरूफ है। खरीदारी के बायस स्वीट्स और बेकर्स की चांदी हो गए। हमारे साथ अली गौर मौजूद हैं। अली गौर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मीठी ईद जो है उसका मज़ा जो है मिठाई के बगैर नहीं होता। और मैं आपको आगाह करूं कि स्वीट्स और बेकर्स की दुकान पर काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से मिठाई की खरीदारी हो रही है, बल्कि जो बेकर्स और स्वीट बनाने वाले हैं उनकी काफ़ी चांदी भी हो रही है। शहरियों का कहना है कि मीठी ईद का मज़ा जो है वो मिठाई के साथ ही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मीठी ईद है तो मीठे के बगैर तो नाम कम लेना, यार दोस्त जो भी आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उस वाले से दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि मिठाई जो है उसके बगैर ईद का जो मज़ा नहीं है, और ख़ासकर जितने मेहमान आ रहे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, उनको मिठाई दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, कितनी ज़्यादा खरीदारी हो रही है? माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा हो रही है, कस्टमर आ रहे हैं, हमारा पहले से अच्छा काम चल रहा है। बगैर हम तो यही कह रहे हैं कि साल में 4 बार ईद आनी चाहिए, जैसा माशाल्लाह काम हमारा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है काम का। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी चांदी हो रही है। उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी दुकान से मिठाई खरीदी जा रही है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बल्कि उन्होंने तो एहतियातन ये भी कह दिया कि ईद 4 बार होनी चाहिए ताकि उनकी दुकानदारी जो है वो काफ़ी अच्छे अंदाज में चल सके। शहरी जो है उनका कहना है कि मिठाई जो है वो ईद की खुशियों को बहुत शुक्रिया अली गौर। चूड़ियाँ और मेहंदी ईद का लाजमी जुज़ होते हैं। कांच की चूड़ियाँ हर उम्र और दौर में ख़वातीन का दिल लुभाती हैं, जबकि ईद हो और मेहंदी ना लगाई जाए, ये कैसे मुमकिन है? डिज़ाइनिंग हो या सादा, ईद पर हिना की भीनी भीनी खुशबू त्यौहार को 4 चांद लगा देती है। रिपोर्ट करेंगे असलम खोखर। चूड़ियों के बगैर ईद का क्या मजा, इसीलिए तो खवातीन नए लिबास के साथ कोई और जेवर गहना पहने या ना पहने, लेकिन खुश रंग चूड़ियों से कलाइयां और मेहंदियों से हाथ को जरूर सजाती हैं। ईद के मौके पर चूड़ियों के बगैर खवातीन की तैयारी मुकम्मल नहीं होती। कांच की सादा रेशमी चूड़ियां हों या अफशा की चमक लिए सतरंगी चूड़ियां, धात की बनी हों या हों प्लास्टिक के कड़े, इन सब की खनक दिल को अनोखा तासुर देती है। मैचिंग सूट के साथ नाजुक कलाई में खनकती चूड़ियां और भी दिल फरेब लगती हैं। मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ चूड़ियाँ लेने। चूड़ियों के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती। चूड़ियाँ पहनते तो ईद फिर अच्छी गुजरती है, मजा आता है चूड़ियाँ लेने। लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो चूड़ियाँ होती हैं। चूड़ियाँ ना हो तो फिर ईद नहीं होती। खवातीन और बच्चियों की ईद बनाव सिंगार और हाथों में मेहंदी के दिलकश डिजाइन बनवाए बगैर अधूरी समझी जाती है। खवातीन कपड़ों के इंतखाब से लेकर मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल और बालों के डिजाइन के साथ साथ खूबसूरत मेहंदी लगाने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। हाथों पर मेहंदी ना हो तो ईद फीकी सी मालूम होती है। चूड़ियों के बगैर ईद बिल्कुल फीकी लगती है, और मेहंदी ना लगवाएं तो फिर ईद बिल्कुल होती ही नहीं है हमारे लिए। तो कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है मेहंदी लगवाने का, और ऐसे यानी कि जो इवेंट्स होते हैं इनमें ज़्यादातर लड़कियां मेहंदी शौक से लगवाती हैं। जो डिफरेंट किस्म की चूड़ियाँ आती हैं और शौक भी होता है चूड़ियों का, इवेंट्स होते हैं, कहीं भी जाना होता है तो सिर्फ मस्ट होता है कि चूड़ियाँ लगाएं। और मेहंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेहंदी के बिना तो ईद होती नहीं है लड़कियों की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेहंदी है। लहलहाते आंचल, खुश रंग मलबूसात, मेहंदी वाले हाथों में चूड़ियों की खनक और चेहरों पर मुस्कुराहट लिए खवातीन और लड़कियां अपनी तैयारी से ईद की खुशियों को दोबारा कर देती हैं। खवातीन के बनाव सिंगार में मेहंदी लगाना मश्क की रिवायत का एक लाजमी जुज समझा जाता है। चूड़ियों और मेहंदी के बगैर खवातीन की ईद फीकी मालूम होती है। हाथों में खनकती चूड़ियां और मेहंदी की खुशबू ईद के त्यौहार को और भी महका देती है। कैमरामैन अरशद सती के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। खानेवाल के इलाके सराय सिद्धू में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया, जिससे हजारों एकड़ फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी। सराय सिद्धू के नवाही इलाका जात सरदारपुर, बाटी बंगला, फाजिल शाह, कौन सरगाना, पिपल, मिराली में लाखों की तादाद में टिड्डी दल हमलावर हो गई। टिड्डी दल के लश्कर ने मिनटों में फसलों को साफ कर दिया और आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। खड़ी फसल मकई, कपास को शदीद नुकसान पहुँचाया। 3 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल लश्कर में लाखों की तादाद में टिड्डी दल मौजूद है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान कपास की फसल को दे रही है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा ज़राअत सराय सिद्धू के अमला ने कपास और मकई पर टिड्डी दल के नुकसान से बचाव के लिए स्प्रे भी किया और कहा कि टिड्डी दल को फसलों पर न बैठने दिया जाए, शोर और पटाखों के जरिए से भगाया जाए और साथ लैमडा स्प्रे भी किया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, सच न्यूज़, सराय सिद्धू। बुरेवाला में मौजा आकू के करीब दरियाए सतलुज का बंद टूट गया। बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबाजी रेहाब आ गया। बुरेवाला के करीब दरियाए सतलुज का बंद टूट गया, जिससे उससे मुल्हिका सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी मकई, चारा और कपास की फसलें
زیر آب آ گئیں، جبکہ اس پانی نے مقامی بستیوں بھنڈا جتیرا، لکھا اور میرو بلوچ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے مزید سینکڑوں ایکڑ رقبہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے فوری امدادی کارروائیاں شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان بھر سے مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ عید الفطر جہاں خوشیاں لے کر آتی ہے، امیر طبقہ عزیز و اقارب کو ملنے، مختلف اقسام کے کھانے بنانے میں مصروف رہتا ہے، وہیں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیالکوٹ کی تحصیل سمڑیال میں ٹیزی زون اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ماحول دوست صنعتی منصوبہ ہے جو بہت جلد اپنی تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ یہ پروجیکٹ سیالکوٹ کی لیدر ٹیزی زون میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ عثمان طارق کی رپورٹ۔ کھیلوں کے سامان، سرجیکل کے آلات اور چمڑے کی مصنوعات دنیا میں برآمد کرنے والے شہر سیالکوٹ میں حکومت پنجاب اور سیالکوٹ چیمبر کے تعاون سے سیالکوٹ ٹینڈی زون کا کیمپ عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں تمام شہر میں موجود چمڑا بنانے والی فیکٹریوں کو عالمی ماحولیاتی قوانین کے مطابق شفٹ کیا جائے گا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد عاطف نے کہا، حکومت پاکستان نے اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے مل کے سیالکوٹ ٹینری زون کا ایک منصوبہ بنایا کہ ہم یہاں سے تمام ٹینریز جو ہیں وہ شفٹ کر کے ایک جگہ پہ محسوس زون میں لے کے جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے ٹینریز کو باقاعدہ ایک تربیت دی جائے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے ماحول دوست بننا ہے اور کیمیکل کا اور پانی کا کم سے کم استعمال کرنا ہے، تو ہماری ایکسپورٹس بہت بڑھے گی، اور ہم اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہم بہت جو ہے روشن مستقبل صنعت کا دیکھ رہے ہیں۔ 400 ایکڑ اراضی پر مشتمل سیالکوٹ ٹینڈی زون کا منصوبہ پاکستان کی چمڑے کی صنعت نئی ترقیوں کی راہ پر گامزن ہوگی۔ یہ منصوبہ تیزی سے پایہ تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ چیف ایگزیکٹو سیالکوٹ ٹینڈی ایسوسی ایشن مظہر گیلانی صاحب نے کہا، جو ٹینڈی زون کا پروجیکٹ ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں ہماری سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب یہ پروجیکٹ 2009 میں کنسیو ہوا اور شروع ہوا تو ہمیں پنجاب گورنمنٹ نے زمین خریدنے کی مد میں ہماری سپورٹ کی، اور ہمیں 29 کروڑ روپیہ ہمیں اس میں سافٹ لون کی مد میں دیا، اور ہم انشاءاللہ یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنانے لگے ہیں جس کی کاسٹ تقریباً 1 ارب روپیہ ہے، تاکہ شہریوں کو ماحولیاتی آلودگی سے نجات مل سکے گی۔ ٹینڈی زون کے فعال ہونے سے دنیا بھر میں پاکستان میں تیار کی گئی چمڑے کی مصنوعات کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا۔ عثمان طارق، نمائندہ سچ ٹی وی، سمڑیال۔ صوبہ پنجاب میں ایک شہر ایسا بھی ہے جو ایک مذہبی لحاظ سے بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کا نام کیا ہے اور کس مذہب کی وجہ سے اس کی پوری دنیا میں اہمیت ہے، یہ بتائیں گے عامر لطیف اپنی رپورٹ میں۔ سکھ مذہب کے بانی اور پہلے گرو بابا نانک نے 15 اپریل 1469 کو رائے بوئے دی تلونڈی کے رہائشی کالو مہتا کے گھر ماتا تڑپتا جی کی گود سے جنم لیا۔ بابا گرو نانک کی پیدائش کے بعد اس جگہ کا نام ننکانہ صاحب پڑ گیا۔ آپ کے والد کالو مہتا اس وقت کے جاگیردار رائے بولار بٹی کے پٹواری تھے۔ بابا گرو نانک کی زندگی سے متاثر ہو کر 750 مربع اراضی تحفے میں دی۔ بابا گرو نانک کی جائے پیدائش پر گردوارہ جنم استان تعمیر کیا گیا جو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ بابا گرو نانک نے دور دراز کا سفر کر کے لوگوں تک ایک رب کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو مساوات، بھائی چارے، نیکی اور رزق حلال کمانے کی تلقین کی اور اپنے ماننے والوں کی تربیت انہی باتوں پر کی۔ جس طرح کہ بابا جی کا فرمان ہے، 3 فرمان سانوں نہ دے، کرت کرو، نام جپو، ونڈ چھکو۔ کرت کرن دا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی دے وچ کاروبار کرو، اچھے تو اچھا کاروبار کرو تاکہ وہ خود بھی کھاؤ تے دوسرے بھی کھوا سکو۔ سکھ مذہب کے 10 گرو صاحبان ہیں اور سکھ مذہب کی مذہبی کتاب کو گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے، جس کا پہلا لفظ رب ایک ہے کا درس دیتا ہے۔ گرو گرنتھ میں بابا فریض گنج شکر کا کلام بھی موجود ہے۔ جیسے بابا گرو نانک نے شروع سے یہ بات دسی کہ کوئی سب انسان کو برابر ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سب خدا دے مخلوق ہے۔ اگر تسی رب نہ پیار کر دو تو مخلوق نہ پیار کرو۔ حق سچ حق حلال کمائی ہوئی تو عبادت پوری۔ اس تو علاوہ وہ فریض بھی گرنتھ صاحب بیٹھے نے، انہیں ذکر ہے اٹھ پریدہ اوزو سا صبح نماز گزار، جو سرسائی نانے میں سو سر کا پتار، پریدہ بریاندہ بالا کر وہ سامان لٹا پالے سب کچھ پا۔ سکھ مذہب کے ماننے والوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جس کو دسوند کہا جاتا ہے، جس کا مطلب 100 روپے میں سے 10 روپے رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بابا گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں یہ ہے کہ 10واں حصہ دسوند مطلب 100 میں سے 10واں حصہ آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گرو کا گولک غریب کا منہ، مطلب گرو کا گولک غریب کا منہ ہی ہے، آپ غریب کو دے سکتے ہیں 10واں حصہ۔ اور ہمارے میں یہ چل رہا ہے تقریباً یہی، ہماری جتنے بھی کمیونٹی آپ نے دیکھی ہوں گی
कि अगर किसी को कोई माली इमदाद की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की या बच्ची कोई ब्याह शादी की, तो हमारे 10वें हिस्से में भी दे देते हैं और पूरा हो जाता है, कोई इशू नहीं। बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल करतारपुर नारोवाल में गुजारे हैं। आप 1539 ईस्वी में 70 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। 1849 में बनने वाला लाहौर का जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसका एक एक हिस्सा बनाने वालों की महारत की रुदाद आज तक सुनाता आ रहा है। अजीम इमारत मलका बरतानिया की 50वीं सालगिरह के मौके पर तामीर करवाई गई। ज़ैन नकवी की खुसूसी रिपोर्ट देखें। लाहौर माल रोड पर वाक़ जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत बरतानवी राज की अक्कासी करती है। जनरल पोस्ट ऑफिस अनारकली के इलाके में अजायब घर के करीब 1849 में तामीर हुआ। ये इमारत मलका बरतानिया की 50वीं सालगिरह के मौके पर तामीर करवाई गई थी। 1912 में मौजूदा खुशनुमा जदीद वज़ा की गई इमारत तामीर हुई, जो आज GPO के नाम से भी पुकारी जाती है। ये इमारत हिंदू मुस्लिम और यूरोपियन फने तामीर का हसीन इम्तजाज है। आली शान इमारत 2 हिस्सों में तकसीम है, एक नाभा रोड और दूसरा हिस्सा अपर मार रोड पर है। इस इमारत का इंतजाम महकमा टेलीग्राफ के सुपुर्द था, चनाचे डायरेक्टर महकमा टेलीग्राफ की निगरानी में यह इमारत तामीर की गई। इस इमारत का डिजाइन सर गंगा राम ने तजवीज किया था। इमारत इस कदर वसी है कि नीचे की मंजिल में 33 कमरे और बालाई मंजिल में 19 कमरे हैं। इसमें एक कुशादा मैदान है जो अमले की तफरीह और खेल कूद के लिए मखसूस है। GPO में एक क्लॉक टावर और 4 बुर्जियां हैं। इमारत के मीनार मलका बरतानिया की तर्ज पर तामीर किए गए हैं। ये अंग्रेजी तर्ज तामीर का एक खसूसी अंदाज है। दूध का सवाल है, वो तो डेफिनेटली कुछ हद तक डिक्रीज हुए हैं, लेकिन हमारा पार्सल मेल का वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ख़ास तौर पे इन दिनों में, जिन दिनों लॉकडाउन की जो सूरत हाल थी, इनमें क्योंकि बाकी कोरियर सर्विसेज उस तरीके से अपना पार्ट प्ले नहीं कर पा रही थी, तो पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी। तो ईद कार्ड्स का ट्रेंड अब ज़रा थोड़ा जो है कम हो गया, क्योंकि जाहिर है एक ईद कार्ड लेना, फिर उसको पूरा वो करके उस तरीके से रैप करना, फिर देना, वो एक ज़रा थोड़ा सा जो है ना स्टेप्स को काउंट किया जाता है। तो उससे बेहतर लोग आजकल ये समझते हैं कि मोबाइल पे मैसेज कर दिया जाए। माल रोड की जानिब से GPO में दाखिल हों तो गेट नंबर 1 पर शहर का सबसे पुराना और पहला लेटर बक्स मौजूद है। 1855 का ये लेटर बक्स नई अनारकली से मुल्हिका धनी राम रोड पर नस्ब था, लेकिन अब इसे GPO में ही नस्ब किया गया है। नो डाउट कोरियर जो है सोर्सेज के बावजूद पाकिस्तान पोस्ट उनसे बेहतर काम कर रहा है, उनसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे बहुत बड़ा है। कोरियर्स लिमिटेड एरियाज में काम करती हैं, जबकि हम पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं। कम हो गई है, नो डाउट। अगर पहले 100 आप लगाएं तो 100 में से अब 10% लोग ऐसे हो गए या 5% लोग ऐसे हैं कि जो थ्रू लेटर जो है या उसकी लेटर की अहमियत को समझती हैं। क्लॉक टावर से 2 रोया सीढ़ियां जो लकड़ी से तैयार की गई हैं, नहायत दिलकश अंदाज में ऊपर की मंजिल तक ले जाती हैं। GPO के एक हॉल में मिस्टर अब्दुल रहमान शहीद की तस्वीर आवेजा की गई है। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान एक पोस्ट मास्टर था जो कैश ले जाते हुए धर्मपुरा के मुकाम पर कत्ल हुआ था। इसी हॉल की एक नुक्कड़ में पुरानी यादगारी टिकटें और पोस्ट कार्ड मौजूद हैं। GPO में 1860 की एक मॉडल बेल अब भी दिखाई देती है। GPO की छत पर अब भी एक पुराना हूटर नस्ब है जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तमाम काम करने वालों को खबरदार करता है। गो के क्लॉक टावर अब नापैद हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि एक जमाना था कि इस क्लॉक टावर की बाज़गश्त पूरे शहर में सुनी जाती थी। पाकिस्तान में डाक खाना का मौजूदा निजाम हुकूमत बरतानिया का रायज शुदा है। किसी भी सल्तनत में ज़राए रस्र व रसायल व मवासलात की अहमियत और अफादियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमत बरतानिया ने 1849 में लाहौर को फतह किया और इसी साल जनरल पोस्ट ऑफिस का कयाम अमल में लाया गया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। सादिकाबाद के कदीमी शहर अहमदपुर लम्हा का तारीखी किला कचरा घर में तब्दील हो चुका। महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जोही के बायस ये किला बर्बादी की अलमनाक दास्तान बयान कर रहा है। ज़माने कदीम की इस खस्ता हाल निशानी के बारे में बताएंगे आसिफ अवान अपनी रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़या अहमदपुर लम्हा के तारीखी किले को कचरा घर बना दिया गया। दिफाई लिहाज से ये किला दरावड़ के बाद रियासत बहावलपुर का सबसे बड़ा किला था, मगर महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जोही ने इस तारीखी विरसा को बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया। किले की बुनियादें मट्टी से बनाई गई थी, जबकि इसका कुछ हिस्सा पुख्ता तामीर किया गया था। इसकी मट्टी की दीवारों की चौड़ाई इतनी थी कि इस
पर बैक वक्त 2 घोड़े दुराए जा सकते थे। किले की पुख्ता हिस्से को रेस्ट हाउस का दर्जा दिया गया था। ब्रिक ईंटों से बना 3 मंजिला रेस्ट हाउस फन्ने तामीर का शाहकार था, जिसे आज भी बैरूनी दीवारों से जांचा जा सकता है। पुल लम्मा का तारीखी किला है। किसी दौर में ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हुआ करता था। बारीक ईंटों और मिट्टी की कच्ची दीवारों से ये बनाया गया था किला। दूर दराज से सयाह जो ऐसे वो देखने के लिए आते थे। हुकूमत की अदम तवज्जी के बायस ये किला आज खंडरात का और भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे ताकि इसकी रौनकें दोबारा से बहाल हो सके। 1868 में कायम होने वाले पुलिस स्टेशन की बाकियात भी मौजूद हैं। 3 मंजिला रेस्ट हाउस की ऊपर की 2 मंजिलें गिर चुकी हैं। पुख्ता दीवारें मौजूद तो हैं मगर बदतरीज ख़त्म हो रही हैं। किला बदतरीन हालत में है। इंतज़ामी गफलत व लापरवाही की वजह से इस किले में शहर भर का कचरा फेंका जा रहा है। किले की ज़मीन बोस दीवारों की मिट्टी तक लोग उठा कर ले गए हैं। किले का लाइट टावर क़याम पाकिस्तान से कुछ अरसा कबल मुनद्दम हो चुका है। इसके 4 बुर्ज थे जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। यह अहमदपुर लम्मा का तारीखी किला था। यहाँ सयाह लोग जो है घूमने के लिए आया करते थे। ये आसार कदीमा की अदम तवज्जी के बायस आज ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि इसको जो है इसकी दोबारा से रौनकें बहाल की जाए ताकि हमें यहाँ सैर व तफरीह का मौका मिल सके। ज़मीनी हक़ाइक़ और तारीख़ से नावाकफ़ मुकामी इंतज़ामिया इस तारीख़ी विरसे को बर्बाद कर रही है। जगह जगह फैली गंदगी और प्लास्टिक बैग की आमेज़श ने तबाही के सफ़र को बढ़ा दिया है। रेस्ट हाउस की इमारत के अंदर गंदगी और जहरीली गैसेस की वजह से ताफ़ुन रहता है। ये बदइंतज़ामी की एक भयानक मिसाल है। तारीख़ी विरसा को ज़िंदा रखने की बजाय इसको कचरे के ढेर में दफन किया जा रहा है। गुमशुदा तहजीबों का अमीन ये अहमदपुर लम्मा का कदीमी किला अपनी हालत ज़ार पर नहोकना है। महकमा आसार कदीमा को इसकी चीखो पुकार शायद सुनाई नहीं देती। आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। 3 सूबों के संगम पर वाक़े ज़िला रहीम यार खान पंजाब का आखिरी ज़िला है। रहीम यार खान खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। इस ज़िले के लोग नहायत ही खुश अखलाक और मेहमान नवाज हैं। मोहम्मद फारूक रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़िला रहीम यार खान एक ऐसा ज़िला है जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये ज़िला 3 सूबों के संगम पर वाक़या है जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब शामिल है। रहीम यार खान रकबे के तनासब के लिहाज से पंजाब का चौथा बड़ा ज़िला है। इस ज़िला को पंजाब का गेट वे भी कहा जाता है। ज़िला रहीम यार खान ज़रई, काश्तकारी, तजारती और कारोबारी लिहाज से जनूबी पंजाब में सोने की चिड़िया तस्वुर किया जाता है। आबादी के लिहाज से भी ज़िला रहीम यार खान 6ठा बड़ा ज़िला तस्वुर किया जाता है। इसके मशरिक़ में ज़िला बहावलपुर, शमाल में दरियाए सिंध, मगरिब में ज़िला राजनपुर और जनूब में सूबा सिंध का ज़िला घोटकी वाक़ है। ये ज़िला ना सिर्फ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़या है बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जाने वाले तमाम मरकज़ी रास्ते भी ज़िला रहीम यार खान से होकर गुज़रते हैं। कपास की पैदावार के लिहाज से भी ज़िला रहीम यार खान को एक ख़ास अहमियत हासिल है, जबकि इसके अलावा अंदरूने व बैरूने मुल्क आम की बहुत बड़ी सप्लाई भी ज़िला रहीम यार खान से की जाती है। ज़िला रहीम यार खान की एक ख़ास पहचान तहसील सादकाबाद में वाक़या भुंग मस्जिद है। भुंग मस्जिद तारीख़ी लिहाज से भी एक ख़ास अहमियत की हामिल है। तहसील सादकाबाद से 25 किलोमीटर के फासले पर इस तारीख़ी मस्जिद की तामीर का आगाज़ सरदार रईस गाजी मरहूम ने 1932 में किया था। 4 एकड़ रकबा पर मुहित जामिया मस्जिद भुंग जनूबी पंजाब की एक अलग ही पहचान बनकर उभरी। 50 साल तक जारी रहने वाली इस मस्जिद की तामीर 1982 में जाकर मुकम्मल हुई। मस्जिद के मिंबर के अतराफ़ में खालिस सोने के औराक से सुनहरी रंग किया गया, जबकि नक्शो निगार का काम भी इसमें सारा साल ही जारी रहता है। मस्जिद भुंग में 4000 से ज़ायद नमाजियों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। इस मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए मस्जिद के सिहन में फव्वारे भी नस्ब किए गए हैं, जबकि इसके अलावा रात के वक्त लाइटिंग का भी अहतमाम किया जाता है। मुताद्दिद जानी मानी अहम तरीन शख्सियात इस मस्जिद का दौरा कर चुकी हैं। दिलकश नक्शो निगार, खूबसूरत गुलकारी और मुनफरिद डिज़ाइन पर मुश्तमिल ये मस्जिद सयाहों को हैरत में मुब्तला कर देती है।
11,880 مربع کلومیٹر پر مشتمل اس ضلع کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 48,14,006 افراد پر مشتمل ہے، جن میں مردوں کی تعداد 24,67,840 ہے، جبکہ خواتین کی تعداد 23,48,938 ہے۔ ضلع رحیم یار خان کا پرانا نام نوشہرہ تھا، جسے بعد میں نواب آف ریاست بہاولپور کے قریبی رشتہ دار کے نام پر رحیم یار خان کا نام دیا گیا۔ 800 سال پہلے جب محمد بن قاسم اور اس کے افواج کے لشکر ملتان کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو یہ بھی اسی علاقے سے گزرے۔ اس اسلامی لشکر نے اس علاقے میں جہاں جہاں بھی پڑاؤ کیا وہاں پر کھجور کی گٹلیاں کھانے کے بعد پھینک دیں، جس کا نتیجہ یہ آیا کہ آج ضلع رحیم یار خان میں جگہ جگہ پر کھجور کے باغات موجود ہیں، جس میں سر فہرست تحصیل خانپور کے ججہ عباسیہ کی باغات کی کھجوریں ہیں، جن کی مانگ پورے ملک میں بے انتہا ہے۔ ضلع رحیم یار خان دنیا بھر کے ان چند گنے چنے تاریخی شہروں میں سے ایک ہے جو کہ اپنے آغاز سے ہی اپنی اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر انہیں آباد کیا گیا تھا۔ مختلف ادوار میں اس تاریخی شہر کو کئی ناموں سے نوازا گیا، جس میں الور، پتن، اولوڈا اور نوشہرہ سر فہرست ہیں۔ رحیم یار خان کے موجودہ نام کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 1889 میں اس ریاست کے بارود خانے میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ریاست کا چہیتا شہزادہ رحیم یار خان مارا گیا۔ اس وجہ سے بھی اس شہر کا نام رحیم یار خان رکھ دیا گیا تھا۔ رحیم یار خان ایک نہایت ہی خوبصورت اور دیکھنے سے تعلق رکھنے والا ضلع ہے۔ یہاں کے لوگ خوش اخلاقی اور مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ کیمرہ مین نعمان جاوید کے ساتھ فاروق چودھری، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ اور اب آپ کو بتائیں، آم کی فصل انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکی۔ کورونا وبا کے پیش نظر آم کی بین الاقوامی منڈیوں میں فروخت اور ایکسپورٹ ہدف کو ممکن بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے محکمہ زراعت کو خصوصی احکامات جاری کیے گئے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں احمد کاشف۔ کی فصل انتہائی اہم مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے اور کورونا وبا کی صورتحال کے پیش نظر ایکسپورٹ حجم میں اضافے کے لیے حکومت کو عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اسی سلسلہ میں وزیر زراعت پنجاب نعمان احمد لنگڑیار اور سیکریٹری زراعت پنجاب آصف خورشید نے فیلڈ فارمیشنز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ آم کے باغبانوں سے روابط مزید بڑھائیں اور انہیں باغات کی بہتر نگہداشت کے لیے فنی رہنمائی کے سلسلہ میں جاری سرگرمیوں میں مزید تیزی لائی جائے۔ علاقائی خبرنامے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ TV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔